यार इस वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स डोंट शो यू, most of the traders don't walk you through what is the process, what is the mindset when you are journaling your trades, when you are taking the trades, and how you are refining your strategy. Most importantly, I walk you through ki how I'm refining my strategy, how I'm planning my journal, and how I am taking forward to be better in my strategy, right? So let's not waste the time, and let me walk you through my screen. Okay, this is the Euro USD forward testing journal that I did, that I started at September 12. Started this journal of Euro USD. हमने अपना strategy यहाँ से refine करना start किया. We observed, we did a live stream, and now I'm gonna tell you. See, my all the wins, मेरा 3 wins रही हैं इस पूरे journal में. We traded till September 12 से लेकर September 27 की observations we had. So we had almost only three winning trades that I recorded in my journal, and we had one, two, three, four, five, six losses with one break even trade. Okay, so that's where we began our Euro USD strategy refining. Okay, so here is the all the observation. अगर आप यहाँ पे observation देखें तो मैंने अपनी सारी ट्रेड्स की यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिख रखी है कि हाउ वी आर गोना मेक इट बेटर. तो यहाँ पे हमने लिखा है कि हर एक ट्रेड का रीज़न कि क्यों लॉस हुआ है, कितने टाइम फ्रेम पे थे, कितना टाइम जोन था, कितनी न्यूज़ थी उस टाइम पे हमने ट्रेड किया, तो वहाँ पे कोई न्यूज़ थी कि नहीं थी, अगर थी तो कितने टाइम पर थी. हमने यहाँ पे सारा डिटेल में सब कुछ लिखा है, राइट? सो इफ यू सी, pumped more than half the TP, but no market structure shift on the 5 minutes. Only displacement candle was there. मतलब कि हमने 5 minutes पे कोई भी एक मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देखा while placing a trade. यहाँ पर भी सेम हुआ कि यहाँ पे कोई मार्केट स्ट्रक्चर नहीं था, बट 1 minute टाइम फ्रेम पे देयर वाज अ प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. वी टुक दिस ट्रेड ऑन 12:15, एंड ऑल्सो यहाँ पे कोई भी न्यूज़ नहीं थी, राइट? तो हमने यहाँ पे सारा ऑब्जर्वेशन से चीज़ें निकाली. जहाँ पर हम पहले रिवर्सल्स पे काम कर रहे थे, देन वी स्टार्टेड टू वर्क ऑन द कॉन्टिन्यूशंस, क्योंकि रिवर्सल में कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होते. मैक्सिमम वी टेक ऑन द डिस्प्लेसमेंट कैंडल, राइट? सो वी वेंट. देन दिस इज द नेक्स्ट जर्नल दैट वी आर गोइंग टू सी. हमारा ये वाला जर्नल जो है हमने October 1 को स्टार्ट किया, एंड वी हैव ऑल द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द ट्रेड दैट वी टुक विद द ऑब्जर्वेशंस. So we started trading at October 1, and Monday ko we had a small win of $99, then we had a small win of $120, and then again so on we had a winning streak of 4 trades, that was 258, 234. अगर हम इसको हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे मैं क्लिक करती हूँ, so I'll show you guys how I am taking my trade. I want you guys to see that this is my thought process while I'm trading, while I'm journaling, and while I'm refining my strategy. और किस चीज़ का मैं ध्यान रख रही हूँ while writing things in my journal, ताकि we can improve better, see the profitability in this strategy that we are testing in Euro USD. तो मेरा पूरा aim to make this video is to go through the process of journaling your trades and refining your strategy. तो अगर आप यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट प्लेस करा है ऑफ द ट्रेड दैट आई टुक ऑन द October 1 ऑन द 1 minute टाइम फ्रेम, राइट? अब यहाँ पे हम और ट्रेड्स देखते हैं. लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द लॉस, राइट? हमने पहला लॉस अपना लिया है October 8 को, दैट इज $260 का लॉस लिया है. 1:1 की ट्रेड थी. तो लेट्स सी हमारा क्या था इसमें, राइट? तो हमने यहाँ पे लॉस लिया है, मैंने लिखा है ऑब्जर्वेशंस में 1:3, 1 hour, 1 minute, 3 minute, 5 minute, and 1 hour, 4 hour daily was bearish trend. 11:55 per trade was taken, but 11:30 candle broke the highs of the previous hourly candle. According to my strategy, it was supposed to be a buy, but I went with the trend. What it indicates कि मैंने अपना रूल ब्रेक किया है, मैंने अपना सेटअप ब्रेक किया है, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग
I didn't took the buys for the buy side. Why? Buy side. Why? Because I thought कि हमारा trend, हमारा 5 minutes पे trend is going down. But if my back tested strategy is saying me to buy, then I should be supposed to go with the buy. Why? Because I always trade on probability of my strategy. I should follow that regardless of any voices or anything that I'm watching on the charts, because हम बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं. So we should stick to our plan, right? तो it was my fault. I took this loss. मैंने अपना लॉस रिकॉर्ड किया है, मैंने अपनी गलती लिखी है. ऑन अक्टूबर 10th को हम बात करते हैं, हमने 258 का लॉस लिया है. यहाँ पे हम देखते हैं हमने लॉस क्यों लिया है, हमने क्या ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखना कि हम जर्नल करते हुए क्या ऑब्जर्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑल द टाइम फ्रेम्स वर इंडिकेटिंग सेल विद द मार्केट स्ट्रक्चर 5 minutes टाइम फ्रेम 2. तो मैंने यहाँ पे देखा कि यार मार्केट स्ट्रक्चर भी सेलिंग दिखा रहा है, सारे टाइम फ्रेम सेलिंग दिखा रहे हैं, बट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इट ग्रैब द लिक्विडिटी ऑफ द हायर टाइम फ्रेम एसएल रिट्रेस टिल देयर एंड सेल. क्या हुआ इसके बाद? हमारा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ ऊपर का फर्स्ट, एंड देन अगेन वी अप्रोच डाउन बाय गिविंग 20 पिप्स. सो हमारा एसएल नॉर्मली गया, लिक्विडिटी ने लिया, बट हमारा बाइस वॉज ऑल गुड, राइट? तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व ये किया. देन again we had a small $36 loss. We had $260 profit here. एंड हमने यहाँ पे फिर से अगेन $200 का लॉस किया, 146 का लॉस किया. देन अगेन वी हैड सम गुड विनिंग स्ट्रीक्स. हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की, लेट्स सी यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्वेशन की है. यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन की है कि आई टुक द ट्रेड एट 11:45. हायर टाइम फ्रेम वॉज बेयरिश. मतलब कि मैंने यहाँ पे 11:45 लंदन सेशन के ओपन होते ही मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है. प्री लंदन सेशन होते ही हमने ट्रेड प्लेस किया. हमारा जो टाइम फ्रेम था वो बेयरिश था. 5 minute टाइम फ्रेम डिस्प्लेसमेंट consolidating a lot before giving a move. SL could be placed 12 pips and 4 pips का हमें ड्रॉ डाउन देखने को मिलता है. यहाँ पे आप एक ध्यान से चीज समझो जो मैंने लिखी है कि हमारा SL 20 पिप्स का था यहाँ पे, तो हमने 1:1 की ट्रेड प्लान की थी. बट अगर मैं अपना एसएल यहाँ पर ट्रेल कर कर अपना एसएल यहाँ रखती, अराउंड 12 पिप्स बनता, तो हमें 1:2 का ट्रेड देखने को मिलता है यहाँ पर ऑलमोस्ट, राइट? तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं अपना एसएल ट्रेल कर सकती हूँ टू द स्विंग हाइज, राइट? तो यहाँ पे हमने एक ये ऑब्जर्वेशन की, और दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने ये की कि हम अपना ड्रॉ डाउन देखें कि हमारा एवरेज ड्रॉ डाउन कितना बनता है. मेरे एवरेज ड्रॉ डाउन यहाँ पे है अभी इस ट्रेड में 4 पिप्स का था. तो हम आगे चलकर देखते हैं, और यहाँ पे हमने 220 का प्रॉफिट किया है. 220 का प्रॉफिट किया है, यहाँ पे देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर वॉज सेल. ट्रेड वॉज टेकन एट 11:30 पे हमने पूरा ट्रेड लिया. एसएल कुड बी प्लेस ऑन द रीसेंट स्विंग हाई 11 पिप्स. ड्रॉडाउन वॉज 9 पिप्स. नो न्यूज वॉज टेकन. तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर सेलिंग दिखा रहा था, हमारा ट्रेड हमने 11:30 लिया था, और एसएल हम लोग अपना स्विंग हाई पे रख सकते थे 11 पिप्स का, और हमारा ड्रॉडाउन था 9 पिप्स का. स्टिल हमारा 2 या 3 पिप से एसएल बच सकता था. बाकी तो हमारा ट्रेड बनता 1:2 का, या 1:2 से ज़्यादा का ट्रेड, राइट? तो हमें ये ऑब्जर्वेशन की है क्योंकि हमने सारी ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ 1:1 ली हैं, तो इसमें न्यूज़ भी देखने को मिली है हमें, और हमें एक अच्छा स्मूथ मूवमेंट भी देखा है इन यूरो यूएसडी, राइट? तो ये ऑब्जर्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जर्नल में करो. दिस इज हाउ यू रिफाइन योर स्ट्रैटेजी. माई ओनली मोटिव टू वॉक यू थ्रू इज दैट, राइट? तो हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर वॉज बेयरिश ऑन 5 minutes. ड्रॉडाउन वॉज 7 पिप्स. ट्रेड वॉज टेकन एट 11:30. इंस्टेड ऑफ 20 पिप्स का एसएल कुड बी एट रीसेंट स्विंग हाई. तो यहाँ पर हमने अगेन सेम ऑब्जर्वेशन की है कि अगर यार हम अपना स्विंग हाई पे एसएल रखें यहाँ पर, तो वी विल बी गेटिंग 1:2 ट्रेड इंस्टेड ऑफ 1:1 ट्रेड, और हमारा ट्रेंड भी बेयरिश में था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट? तो हमने यहाँ पे मेजर ऑब्जर्वेशन हर एक ट्रेड में हम यही देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम अपना एसएल ट्रेल करके 1:2 रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम 2 लॉसेस और किए हैं, ये भी हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट? यहाँ पे जो हमने लॉस किया है, मार्केट स्ट्रक्चर वॉज बेयरिश ऑन
Market structure was bearish on all the time frames. I took the trade on 12/5. Consolidation happened all day and hit the SL at the end, gave us 10 pips. मतलब कि अगर अगेन अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, अगर हम अब अपना स्विंग हाई से हटाकर अपना SL ट्रेल करते स्विंग हाई पर 20 पिप्स के बजाय, सो वी वुड बी हैविंग 1:1 का हमें विन ट्रेड मिल चुका था, क्योंकि हमें 10 पिप्स ऑलरेडी मार्केट ने दे दिए थे, राइट। उसके बाद हमें एक ऊपर की मूवमेंट देखी, तो वी टुक अ लॉस फ्रॉम दैट। सो अगेन दैट हमें एक और मेजर पॉइंट मिलता है यहाँ पे टू रिफाइन आवर स्ट्रैटेजी। ओके, तो हम अगेन अपना लॉस दूसरा देखते हैं कि हमारा $250 का लॉस क्यों हुआ। यहाँ पे $250 का लॉस इसलिए हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर ऑन 5 minutes was sell, news took the SL, higher time frame was sell bias, direct bias hit, took trade at 11:45। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये आई कि यार हमारा बायस तो ठीक था यार, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी मेजर न्यूज आई जिसने हमारा एसएल ले लिया। एक ही आप कैंडल में देख सकते हो कि इट टुक द एसएल, राइट। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। एंड अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा दो प्रॉफिट, 231 का गेन प्रॉफिट हुआ, 248 का गेन प्रॉफिट हुआ, तीन लॉसेस हमने अगेन लिए एंड मेजरली हमने दो यहाँ पे कल और आज एक प्रॉफिट लिए। ये भी हम लास्ट में देख लेते हैं कि क्या था यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे ट्रेड वॉज, अब हमने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर यहाँ पे एक पिवट करा, हमने यहाँ पे चेंज करा कि अब हम ट्रेड विल बी टेकिंग ऑफ 1:2 इंस्टेड ऑफ 1:1। तो हमने यहाँ पे चेंजेस करे कुछ। द ड्रॉ डाउन वाज 6 पिप्स, तो हम यहाँ पे बचे 2 या 3 पिप्स के एसएल की वजह से। तो हमारा हमने 8 पिप्स का एसएल रखा था, मतलब कि 2 पिप्स अवे फ्रॉम द स्टॉप लॉस, राइट। बट वी गॉट सेव्ड एट द एंड। कंसोलिडेशन हैपेंड अ लॉट and gave the move in the NY session. There was a red folder in the NY session, तो हमें ये एक move देखने को मिला that was very impulsive, took the liquidity and went up again, right? Simple observations। यहाँ पे फिर हमने again 1:2 की एम करी। यहाँ पे देखो 1:2 ट्रेड वॉज टेकन, 6 पिप्स ऑफ द ड्रॉ डाउन, 10 पिप्स एसएल, नो न्यूज इन द एनवाई सेशन, आफ्टर द कंसोलिडेशन इट गेव अस द मूव। ठीक है, तो प्रॉपर्ली अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मूव दिखा, हमने यहाँ पे प्लेस किया, एसएल अपना स्विंग लो पर लगाया एंड हमने 1:2 की ट्रेड प्लान करी विच वॉज वेरी सक्सेसफुल। लोग आज हमने ट्रेड नहीं ली, राइट, ऑन द फ्राइडे। इट्स आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन द फ्राइडे, तो आप हर एक फ्राइडे देखो हमारा लॉस होता है। द फर्स्ट फ्राइडे October 3 को आप देखो ब्रेक इवन गई है हमारी ट्रेड। हमने October 10 को देखा $258 का लॉस हुआ है। हमने फ्राइडे को देखा नो ट्रेड वॉज टेकन। हमने अगेन फ्राइडे को देखा 238 का हमारा लॉस हुआ है। हम अगले फ्राइडे जाते हैं, हमने अगले फ्राइडे मेरा लॉस होना था विच आई डेंट टुक द ट्रेड, और इस फ्राइडे भी आई डेंट टुक द ट्रेड बिकॉज ऑफ द प्रीवियस लॉस हैपनिंग इन द ऑन द फ्राइडेज। तो हमने फ्राइडेज को ऑब्जर्व किया कि वी विल अवॉइड द ट्रेड और हम उस पर काफ़ी कम रिस्क लेंगे। बाकी इफ़ यू सी ऑन द मंडेज, मंडे हमारा $99 का प्रॉफिट हुआ। अगेन ऑन मंडे वी हैड अ $227 का प्रॉफिट। अगेन विल कम ऑन मंडे $231 का प्रॉफिट, राइट। एंड दिस मंडे इट वुड बी एक्सेप्शन, और मे बी राइट दैट हमारा 256 का यहाँ पे लॉस था, राइट। तो हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे मैक्सिमम लॉस यार इट्स हैपनिंग ऑन मंडे एंड मैक्सिमम लॉस इज हैपनिंग ऑन फ्राइडेज। तो हम यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी में रिफाइनेशन ला सकते हैं कि हमने कब रिस्क बढ़ाना है और अपना कम रिस्क कम करना है। तो दैट इज द गाइस मेन थिंग आई वांट टू वॉक यू थ्रू। मेरा मेन मोटिव ही यही है टू वॉक यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाउ टू रिफाइन a strategy, how to manage your journal, how to what things you should write in your journal, और आप अपना कैसे मेंटेन कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो। आप देखो पहले हम यूरो यूएसडी का यहाँ पे रिवर्सल्स ले रहे थे, फिर हम कंटिन्यूशंस पे शिफ्ट हुए। यहाँ पे मैंने अपना स्क्रीनशॉट्स हर एक ट्रेड के यहाँ पे लिंक प्लेस करना स्टार्ट करा, सो आई कैन रिवाइज माई जर्नल कि मैंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा, टीपी कहाँ रखा, कितना रिस्क रिवॉर्ड था, क्या चेंजेस कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो उसी के अकॉर्डिंग वी टुक द ट्रेड्स, राइट। एंड नाउ वी आर, अगर आप देखो कि हमने इस वाले जर्नल में वी वर ऑन द लॉस, नाउ वी आर ऑन द मोर देन अ ब्रेक इवन स्टेज। यू कैन सी ऑन दिस जर्नल
अब देखो मेरा एम यहाँ पे यही है कि मैं आपको ट्रांसपेरेंसी से सब कुछ दिखाऊं, सारे लॉसेस दिखाऊं, सारे प्रॉफिट दिखाऊं, और आपको एक थॉट प्रोसेस जो कोई भी ट्रेडर नहीं दिखाता फॉर अ ट्रेडर, कि उसे कैसे अपनी जर्नी अप्रोच करनी चाहिए, कैसे अपना रिफाइनेशन का प्रोसेस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एनालिटिकल नहीं हो, अगर आप अपनी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो, तो यू विल नॉट बी गेटिंग एनीवेयर इन द ट्रेडिंग पार्ट, राइट? सो दैट्स ऑल गाइस। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, स्टे ट्यून, आई एम गोना शो यू व्हाट अकाउंट्स आई हैव टेकन फॉर द पासिंग द चैलेंज, एंड कितने प्रॉफिट में है, कितने डाउन में है, आई विल शो यू एवरीथिंग। सो लेट्स स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड till then focus on maintaining your journal, focus on refining your journey. If you are not in my Discord channel, just join the Discord channel and DM me if you have any question, any query regarding it. See you in the next video. Thank you guys.